कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि आज ही के दिन जो मिलिंद देवड़ा का इस्तीफा हुआ वो प्रधानमंत्री ने पहले से वो सुबह की बात है। अब न्याय का हक मिलने तक हम शुरू कर रहे हैं अपनी यात्रा। अब पॉजिटिव बात करो, छोड़ो पहले से तय था, क्या भाजपा ने एजेंडा सेट किया था सर? उनसे पूछिए। जो इतना घबरा जाते हैं, हम जब भी कोई यात्रा शुरू करते हैं तो कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते हैं ये लोग। Of Shri Milind Deora ji today from the Congress party. Both Milind ji and his family have contributed tremendously to the Congress party, to the organization, to Mumbai and to Maharashtra, and I think this is a big loss for both Maharashtra Congress and for Mumbai Congress. As a political analyst, I would like to say one thing to respected Uddhav Thackeray ji, that statements particularly made by Sanjay Raut ji have continuously caused damage both to the MVA government. Many people believe one of the causes of the MVA government falling was statements of Sanjay Raut ji, and now even into this alliance, the India alliance. Recently, Sanjay Raut ji's statements on the alliance and seat sharing in Maharashtra, in my opinion, was an insult to the Maharashtra Pradesh Congress, which has 3 former chief ministers, and all of them are very big leaders, tall leaders in their own rights. So I hope that Uddhav ji can rein in Sanjay Raut ji. One thing that I think is very clear is that when Shiv Sena had won the South Mumbai seat, they had won it because of Prime Minister Narendra Modi ji. But in today's context, in 2024, who is the best candidate to win South Mumbai? Is it Milind Deora ji or is it the Shiv Sena? That is something I think political pundits, political parties and the voters have the answer for. But I would like to wish Milind all the best on his journey, and he's been graceful in resigning, and I still feel very bad that he's left the Congress. Do you feel, sir, Uddhav Thackeray must check on this, when you question Sanjay Raut, how he's making statements? Definitely. I hope Uddhav ji can rein him in. Time and again, the statements he's made, since the time the government has been in power, the MBA government, his statements have caused controversy. It's taken focus away from the core issues. It's caused distraction. And most people in Maharashtra do not like such politics. And you all have covered Maharashtra politics. Maharashtra politics isn't like that. So I would hope that these statements that Sanjay Raut ji has made are now kept under check. I do believe that the alliances have been affected. These alliance talks have been affected because of the statements that Sanjay Raut ji made. Sir, what we are hearing that Mr. Milind Deora is likely to join. In fact, he's joining the Shiv Sena, the Shiv Sena which is led by CM Eknath Shinde. It will be a tremendous gain to Eknath Shinde ji if he is joining him, and it will be a tremendous loss to the Mumbai Congress and Maharashtra Congress. Like I said earlier, and I repeat, who today can win South Mumbai? Is it Shiv Sena, Uddhav Thackeray ji's group, or is it Milind Deora? Let's be honest, Shiv Sena won South Mumbai because of Narendra Modi ji. Let's be very honest on that. I think it's a tremendous loss. South Mumbai is a traditional Congress seat which the Deoras had nurtured. It's a tremendous loss. हम हर उस देशभक्त का, राष्ट्रवादी व्यक्ति का स्वागत करेंगे जो देश के निर्माण में भागीदारी करना चाहता है। 2024 से हम इसका आगाज भी कर रहे हैं और 2047 तक विकसित भारत देना है। मोदी जी के नेतृत्व में चलना है और इसको सब लोग जो प्यार करते हैं, महात्मा गांधी की कांग्रेस के लोग, जो लोग गांधी के रास्ते पे आज हम चल रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत का निर्माण चल रहा है। जो लोग, जितने भी लोग हैं, अनेक तरीके से अनेकों पार्टियों में काम कर रहे हैं, लेकिन जहां परिवारवाद को छोड़कर भारत माता का बेटा आगे बढ़ने का काम कर रहा है, उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, सभी का स्वागत है। देखिए, कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो ना तो सच सुनना चाहते हैं और न सनातन की बात सुनना चाहते हैं, न राम की बात सुनना चाहते हैं। जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो ज़मीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कुछ लोगों की गलतियों की सजा पूरी कांग्रेस पार्टी को ना दे। सर, ये लंबी फिवा नेताओं को छोड़कर जाने की, सिंधिया हो, यूपी से कई नेता गए छोड़कर, अभी मिलिंद देवड़ा, ये क्या कारण है सर? ऐसा क्यों हो रहा है कांग्रेस में? विनाश काले विपरीत बुद्धि। राम के खिलाफ
सनातन के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ। तो जो राष्ट्र की बात करेगा और जो राम की बात करेगा, उस नेता को कांग्रेस के भीतर एक जो चौकड़ी है वो पसंद नहीं करती, और वो वामपंथ के विचारधाराओं से प्रभावित है। वो पूरी की पूरी कांग्रेस को बर्बाद करने में लगी है। जो सही फैसला होता है उसकी जगह गलत फैसला कराया जाता है। उसी का परिणाम है कि बड़े बड़े नेता, वो नेता जो गांधी परिवार के बहुत निकट थे, वो नेता जो राहुल जी को बहुत चाहते थे, वो नेता जो राहुल गांधी जी के साथ रहते थे दिन रात, सिंधिया हो, आरपीएन सिंह हो, जितेंद्र प्रसाद हो, मिलिंद देवड़ा हो, वो धीरे धीरे करके सब किनारा कर रहे हैं, सब छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस को कोई नहीं छोड़ रहा है। इस चौकड़ी की वजह से कांग्रेस, देखिए, हम सभी यहाँ पे मणिपुर में आए हैं। मणिपुर के लोगों ने हमको स्वागत किया है, क्योंकि मणिपुर की बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन उठाती है। इस पल पे मिलिंद देवड़ा जी नहीं है तो उन्हीं का नुकसान है, लेकिन मणिपुर आज इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा के दौरान स्वागत कर रही है और खुलेआम से हमको सहयोग कर रही है। आज मिलिंद देवड़ा जी का ट्वीट पड़ा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा देने की उसमें बात की है। कांग्रेस परिवार और देवड़ा परिवार का एक अलग समीकरण रहा है, और जब आज उनका ट्वीट पड़ा तो व्यक्तिगत मुझे और कांग्रेस पार्टी को इसका बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके साथ संवाद करने का मैंने खुद और साथ ही साथ प्रभारी जी ने भी बहुत कोशिश की थी। हम एक परिवार है, हमें साथ में रहना चाहिए, और जिस तरह से मुरली भाई के कांग्रेस परिवार के साथ संबंध रहे हैं, दुख और सुख में मुरली भाई कांग्रेस परिवार के साथ रहे हैं। और आज जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई है और उसी दिन ये निर्णय आना, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती, ये मुझे यहां से कहना होगा। तो मैं उनसे यही कहूंगी कि आप हमारे परिवार का सदस्य रह चुके हैं, आप इस निर्णय के ऊपर वापस एक बार सोचिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी रही है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आपको ताकत दी है। विचार, आइडियोलॉजी अब ये नहीं रही है। सब सत्ता की राजनीति है, खोखे की राजनीति है और कुछ नहीं। हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरली देवड़ा जी को जानते थे, बहुत ही बड़े नेता थे। कांग्रेस के साथ उनका जो लगाव था, उनकी जो निष्ठा थी, हम उनके सभी को बोलते थे उनका आदर्श रखिए कि पार्टी के लिए क्या करना चाहिए, कैसा त्याग करना चाहिए। मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी है, क्या कांग्रेस की? मैं क्या कह सकता, किसी को अगर पार्टी छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, छोड़ दे, मैं क्या कह सकता। कुछ दिन पहले नागपुर में उनसे मुलाकात हुई थी, अच्छी अच्छी बात भी हुआ था, आपस में मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यूज भी हुई थी। उनके बारे में हम सही सलामत है या नहीं पूछा, खैरियत पूछे गए, उन्होंने भी मेरे खैरियत पूछी। पहले हमारा मंत्री थे, चुनाव जीते थे, कांग्रेस पार्टी के एमपी थे, तो अभी गए तो मैं क्या कर सकते। उनको पूछिए ना क्यों गए हो। कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं दिया कि आज जाने की उनको नौबत आ गई, ये उनको पूछिए, मुझे पूछने में क्या फायदा। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री ने उनके रेजिग्नेशन की टाइमिंग सेट की है। ये देखिए, अगर कांग्रेस जब कहते हैं कुछ सच्चाई है, मुझे तो इतना जानकारी नहीं है, सारे जानकारी मुझे अवगत नहीं हो सकते। कैसे हो सकता है? मैं कलकत्ता से आता है, सारे जानकारी मुझे कैसे मिलेगी? Subscribe to One India channel and never miss an update.